جو امام نے جملہ دیا یہ ہے اب فقہ کی بنیاد. اس جملے کو نہ بھولیے گا. امام نے فرمایا جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے ہمارے قریب آئے گی. داد والا جملہ اگلا ہے, علم 400 تھے استاد ایک تھا. آئے نوجوان اپنے کلاس فیلوز اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس بات کو ضرور شیئر کرو. یہ ہے میرے مذہب کی سچائی. جو دنیا کو کیمسٹری سکھا کے گیا وہ علم کیمیا کا استاد جابر بن حیان میرے مولا کی نالین صاف کرتا تھا. آخر حکومت مل بیٹھ کے مشورے پہ مجبور ہو گئی. قتل کیا نہیں جا رہا, شہر سے وہ جان نہیں رہا, جواب کسی کو مل نہیں رہا. آخر ایک نے اٹھ کے کہا پھر وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے تھے. مادہ کتنے ہیں, ان میں سے کون کتنی دیر زندہ رہے گا, کس نے کون سی خوراک کب کھائی ہے. اتنا کہنے تھا چہرے پہ سردی آ گئی اور پریشان ہو گیا, ہو کے کہنے لگا یہ تو میں بھی نہیں جانتا اور یہ تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا. امام نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کہنے کے بعد امام نے بچھوؤں کی طرف دیکھا, نعرہ علیحدہ ہو جاؤ, مادہ علیحدہ ہو جاؤ, کہ ہر چیز معصوم سے نہ پوچھو, کچھ ہم بھی بتائیں گے. امام کے سامنے جب اتنی دکانیں کھل گئیں اور جھوٹے امامت کے دعوے ہونے شروع ہو گئے, ادھر بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے. بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی, عباسیوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. عباسیوں کا بادشاہ منصور جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں دمشق سے دارالحکومت کو اٹھا کے بغداد لوں, لہٰذا عباسی بادشاہ جو ہیں وہ بغداد شہر آباد کرنے میں مصروف تھے. اللہ کی طرف سے صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ جو دنیا کے خواہش مند تھے وہ شہر آباد کر رہے تھے. رحمان کے نمائندے کو موقع مل گیا کہ امام نے مسجد نبوی کا دروازہ کھلوایا. امام نے کہا اعلان کروا دو کہ صرف مسجد نماز کے لیے نہیں, جو بھی پڑھنا چاہے. امام نے مدینے کی مسجد کو اسلامک یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. امام نے نوکروں سے کہا اعلان یہ بھی کروانا کہ میرے پاس پڑھنے کے لیے کلمہ شرط نہیں. امام کا حکم دیکھتے جانا اور فقہ کی ترتیب دیکھنا کہ لتائی کے ساتھ ہوئے. امام نے فرمایا اعلان کرواؤ کہ جو مجھ سے پڑھے, کوئی شرط نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی. آج بھی امام کے گھر میں یہی قانون ہے. آج بھی مجلس حسین میں کوئی شرط نہیں ہے, کیونکہ یہ امام کی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں. امام نے کہا یہودی ہے, عیسائی ہے, دہریہ ہے, کوئی بھی ہے, آئے پڑھے. ایک صحابی نے کہا مولا پڑھانا جو ہے تو پہلے کلمہ پڑھائیں, علم جو سکھانا کچھ پڑھیں تو پہلے کلمہ تو پڑھیں. جو امام نے جملہ دیا یہ ہے اب فقہ کی بنیاد. اس جملے کو نہ بھولیے گا. امام نے فرمایا جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے ہمارے قریب آئے گی. جاہل کو علی سمجھ نہیں آتا. امام نے فرمایا جتنا دنیا پڑھے گی اتنا ہمارے قریب, کیونکہ علم ہمارا ہی دوسرا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے منبر پہ آج تک پڑھتے کہیں اور ہیں. ہمارے منبر کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنے بڑے مناظر گزرے وہ پڑھے کہیں اور سے تھے, اور تعلیمات محمد و آل محمد کی تبلیغ انہوں نے آ کے اس منبر سے. امام نے کہا اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے کلمہ شرط نہیں. اعلان ہو گیا جی کلمہ شرط نہیں, پڑھو. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کا سکول, کالجز اور یونیورسٹی کے ساتھ تعلق ہے ان کے معلومات کے لیے جملہ دینا چاہوں گا. وحد مدینے میں امام کی یونیورسٹی تھی جہاں 400 علوم ایک وقت میں پڑھائے جاتے تھے. داد والا جملہ اگلا ہے, علم 400 تھے استاد ایک تھا. آئے ایک استاد. نوجوان میری اس بات پہ تائید فرمائیں گے کہ فزکس کے ٹیچر کا پیریڈ ہو اور اگلا میتھ کے ٹیچر کا ہو, میتھ والا استاد چھٹی پہ ہو تو فزکس والا نہیں کہتا کہ میں میتھ بھی پڑھاؤں گا. چلے میں دوسرے طبقے کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, ہارٹ اسپیشلسٹ کبھی بھی آنکھوں کا معائنہ نہیں کرتا. ہر کسی کو اپنے علم پہ مہارت ہوتی ہے.
400 अलूम एक उस्ताद। इस घर के पढ़ाने के तरीके भी बड़े निराले होते थे। ये वाहद घर था जहां शागिर्द 100 साल के होते थे, उस्ताद 9 साल का होता था। ये शर्फ सिर्फ इसी घर में। इमाम ने कहा हम पढ़ाएंगे, पढ़ो जिसने पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो। नौजवान अपने क्लास फेलोज, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे इस बात को जरूर शेयर करो। ये है मेरे मजहब की सच्चाई। जो दुनिया को केमिस्ट्री सिखा के गया, वो इल्म कीमिया का उस्ताद जाबर बिन हयान मेरे मौला की नालैन साफ करता था। इमाम ने कहा जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। खबर दरबार पहुंच गई, वो तो पढ़ाना शुरू कर गया। तुम हुकूमत बनाने के चक्कर में हो, उसने तो मदीने की मस्जिद को मकतब बना दिया। तो क्या हो रहा है? उन्होंने कहा लोग जाते हैं, इतना रश है वहां पे, जो पूछता है वो उसे उसका जवाब दे रहा है। क्योंकि दुनिया उस दौर में इल्म की भूखी थी और ये जिन्स मिलती इसी घर से थी। इल्म के लिए लोग तरसे हुए थे। हाकम ने कहा चलो ठीक है, अगर उन्होंने तरीका बदला है तो हम भी तरीका तब्दील करें। उनका क्या तरीका करे? उसने कहा अगर दुनिया इल्म की भूखी है तो दुनिया को दौलत की भी भूख है। ऐलान करवाओ कि जो दरबार से आके सवाल पूछेगा सरकारी उलमा से, वो सरकारी उलमा इकराम से आके सवाल पूछे और उसे वापसी पे 1 दिरहम बतौर अनाम दिया जाएगा। सिर्फ सवाल पूछने का अनाम 1 दिरहम। दिरहम के लालच में लोग आएंगे, सवाल पूछेंगे, इमाम की फिका वहीं रुक जाएगी, हमारी फिका नाफज हो जाएगी। हशाम का फूला हुआ सांस इमाम का नौकर, इमाम का शागिर्द इमाम के कदमों पे आके गिरा। गिर के कहता मौला, हाकम का एक मुनादी गलियों में मुनादी कर रहा है कि उस दरबार से आके उलमा से सवाल पूछे, हम 1 दिरहम देंगे। मौला अब क्या हो गया? अब तो मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। इमाम ने कहा जिस गली में वो ऐलान करके गुजरता जा रहा है, पीछे उसी गली में तू भी ऐलान करता चला जा। उसका मौला मैं क्या ऐलान करूं? इमाम ने फरमाया तू कहते रसूल का बेटा सादक कह रहा है, जो हमसे आज के बाद सवाल पूछने आएगा वो 1 दिरहम जमा करवा के जाएगा। उसका मौला वहां बांट रहे हैं, यहां देगा कौन? इमाम ने कहा तू ऐलान करके आया। ये ऐलान करके आया। अगले दिन तरीका ही तब्दील हो गया। लोग दरबार में जाते, सवाल पूछते, 1 दिरहम लेते, सीधे इमाम की बारगाह में आते, जमा करवा। अब तू बता सच क्या? लोग वहां जाते, सवाल, दिरहम यहां, खजाने भी खाली। अब वहां सवाल का जवाब क्या लिया जाए? वहां तो एक हिंदुस्तान से जादूगर आ गया था, शोभत अब्बास। पूरा 1 हफ्ता उसने हुकूमत परेशान रखी, जादूगर ने। वो आया, उसने आके कहा जी कौन है दरबार में, जवाब देते हैं। कितने बंदे उठ के खड़े हो गए। उसने कहा हम जवाब देते। क्या पूछना चाहता है? उसका पूछने कुछ नहीं है, दिखाने आया हूं। क्या दिखाना है? उसने कहा तुम कहते हो तुम्हारा अल्लाह चीजों को खल्क करता है। हाँ खल्क करता है। मारता कौन है? उनका हमारा अल्लाह। उसका जो खल्क करे वो भी अल्लाह, जो मारे वो भी अल्लाह। कहते हाँ। उसने फौरन अपना थैला खोला, एक डब्बी निकाली, उसने खाली की शीशे की, खाली है, उसने नीचे से मिट्टी उठाई, उसके अंदर डाली, फिर नीचे फेंकी। बिच्छू दौड़ना शुरू हुआ। अब बताओ इन बिच्छुओं का खालिक कौन है? ये किसने बनाए? उसने कहा मैंने। झूठ बोल रहा है तू, दोबारा बना। उसने फिर उठाए, फिर शीशी में, फिर फेंकी मिट्टी। उसने कहा देखो, एक के हाथ में दोबारा शीशी दी, खाली है, खाली है। फिर मिट्टी उठाई, डाली, फिर फेंकी। अब क्या है? बिच्छू। अब बताओ खालिक कौन है? वहां से उठे, जो मेन था काजी, उसके पास गए। उन्होंने कहा सरकार तशरीफ लाएं, हम बताते हैं, वो दिखा रहा है। क्या? उसने कहा जादूगर आ गया है। मिंबर पे बिल्कुल सच्चाई पढ़ रहा हूं, तारीख पढ़ रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा। काजी से उन्होंने कहा तू दरबार में। काजी ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर्दे का बंदोबस्त करो, मेरे गुजरने की जगह बनाओ ताकि मैं छुप के निकल सकूं। कोई पूछे तो कहना काजी साहब शहर में नहीं है, अगले जुम्मे को वापस आएंगे।
अगला जुमा आने से पहले इसे कत्ल करो। काजी ये कह के शहर से निकले। जब कत्ल करने का सोचा तो उसने कहा अगर मुझे किसी ने कत्ल किया मैं मर जाऊंगा, सवाल जिंदा रहेगा। तू मर जाएगा तो तेरे बाद क्या होगा? उसने कहा 300 शागिर्द छोड़ के आया हूं, सारे आएंगे। सवाल वो भी किस किस को मारोगे? हल बताओ इसका। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे अगले जुमे को, काजी की वापसी का। इतना मसाला फैल गया कि लोगों का रश हर वक्त उस शोबदा के पास होता। अगर हुकूमत मिल बैठ के मशवरे पे मजबूर हो गई, कत्ल किया नहीं जा रहा, शहर से वो जान नहीं रहा, जवाब किसी को मिल नहीं रहा, आखिर एक ने उठ के कहा फिर वही करते हैं जो बड़े करते थे। वही करते हैं जो बड़े करते थे। जान बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं, पैगाम भेजते हैं मदीने। वहां रहता है साहिब सलूनी का बेटा, वही आके बचाएगा। नहीं 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 नहीं, इमाम जिसकी फिक्र हो रही उसे बुलाएं। उन्होंने कहा फिर नहीं बुलाना तो इसे अल्लाह मानो। इमाम को सरकारी वफद ने जाके मदीने इतला दी। इमाम ने फरमाया अब बताओ हुकूमत खतरे में है या मजहब? अगर हुकूमत खतरे में है तो हम नहीं निकलेंगे, अगर दीन खतरे में है तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, फिर हमारी नहीं। जो जुमला इमाम ने कहा वो सियालकोट में पढ़ने लगा। इमाम ने फरमाया हम सिर्फ नाशरे दीन नहीं, मुहाफ़िज़े दीन भी है। हमारा काम सिर्फ दीन पहुंचाना नहीं, हिफाजत करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम तहफ़्फ़ुज़े दीन के लिए आएंगे। जाओ अगले जुमे का इंतजार करो, हम पहुंचेंगे। वापस आ गए और इमाम की सवारी बाबुल बगदाद से शहर बगदाद की तरफ चली। उधर ये शोबदाबाज बगदाद के मरकजी चौक में लोगों का रश लगा के खड़ा हुआ था। आज भी आप देखेंगे शोबदाबाज के गिर्द कितना रश होता, ऐसे लोगों का रश, और वो दरमियान में वही तमाशा बार बार दिखा रहा। इमाम की सवारी करीब आ गई, पीछे से किसी ने आवाज दी, रास्ता दो, मोहम्मद का बेटा आ रहा है। रस्ते का हटना था, शोबदाबाज ने इमाम का चेहरा देखा, हाथ मांग के कहा आप क्यों आ गए? इमाम ने फरमाया इनकार तूने हाकमियत का नहीं, इनकार तूने तौहीद की हाकमियत का किया है। बता कहां है तेरी मखलूक? जमीन पे फिरते हुए बिच्छुओं की तरफ इशारा करके कहने लगा शहर बगदाद गवाह है, इन्हें मैंने खल किया है। इमाम ने कहा अच्छा तो फिर ये भी जानता है कि खालिक मखलूक की खसूसियात से भी वाकिफ होता है, नकायद से भी वाकिफ होता है। अगर तू इनका खालिक है बता नर कितने हैं, मादा कितने हैं, इनमें से कौन कितनी देर जिंदा रहेगा, किसने कौन सी खुराक कब खाई है। इतना कहने तक चेहरे पे सर्दी आ गई और परेशान हो गया, होके कहने लगा ये तो मैं भी नहीं जानता और ये तो फिर कोई भी नहीं जानता। इमाम ने कहा तूने कैसे कह दिया कोई भी नहीं जानता? ये कहने के बाद इमाम ने बिच्छुओं की तरफ देखा, नारा अलहदा हो जाओ, मादा अलहदा हो जाओ। मैं जुमला कह दूं सियालकोट अड्डा पसरूरिया में, अगर अकीदा इजाजत है, शोबदाबाज ने कदमों पे हाथ रख के कहा रब की कसम अब बता तू मखलूक है या खालिक है? फौरन इमाम ने अंगूठे शहादत को आसमान की तरफ, इमाम को आज शहादत अल्लाह। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।